ऑडियो नहीं आ रहा है, ये आवाज नहीं आ रही। ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट पे है मैडम। नहीं, आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज तो नहीं आ रही है। पढ़मं हवै मङ्गलम्।
आढमं हवै मङ्गलम्. Preksha Meditation. 24th Jain Tirthankara, Lord Mahavira attained enlightenment through Preksha meditation, and Acharya Mahapragya, after decades of scientific research, revived this technique for the benefit of humanity. It connects you to the soul level, bringing changes in attitude and behavior at the deepest level. It is the best therapy to cure lifestyle and emotional disorders. The body is first prepared with yogasana. Pranayama, Dhyanasanas, and mudras. The elements of Preksha meditation include Kayotsarg, relaxation of total body with full awareness. Perception of breath. It is a bridge between body and soul. Perception of body, connecting with subtle energy flowing in the body. Chaitanya Kendra Preksha, energizing the psychic centers. Leshya Dhyan, correcting imbalanced energy with color meditation. Anupreksha, correcting from within, leading to transformation. Internal trip, lift your energy from Shakti Kendra to Gyan Kendra. Mantra chanting, invoking mantra energy for inner purification. Adhyatma Sadhana Kendra is known for healing the people with the help of Preksha meditation. But we must also know that we heal in a holistic manner. Not only we have asana, pranayama and meditation as part of Preksha meditation, we also have naturopathy, equally well equipped. We have psychotherapy, we have aura scanning, we have acupressure and acupuncture, and we have a regulated natural diet which is close to the nature. Graha Nakshatra balancing with mantra chanting. Each chakra represents a specific planet. Meditate on specific chakra with a specific color. Balance your stars with mantra chanting, concentrating on specific chakra. A world-class spiritual retreat. India's premier retreat for your spiritual awakening. Running Preksha meditation health camps since 1964. Healed more than 500,000 people. Recover here from cancer, blood pressure, diabetes, arthritis, thyroid, kidney and liver diseases, stress and psychosomatic diseases. No medicines, no surgeries. Holistic treatment with Preksha meditation. We try to look at a problem as to how it can be addressed.
not that only one therapy संदीप should जी, be given, but a therapy which is सेशन शुरू required करें। should be given. I want to keep on doing Preksha meditation every day. हाँ जी Please start the session. चेतन जी, संदीप जी आप अनम्यूट है। हाँ बोलिए मैडम। स्टार्ट करिए सेशन। अच्छा ठीक है करें। अनम्यूट करें। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट स्टार्ट करें मैडम, वो वीडियो के साथ ही स्टार्ट करें, वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वीडियो नहीं शेयर करना है, आपका जो भी वेलकम स्पीच है वहां से स्टार्ट करिए। वेलकम स्पीच ही कर रहा हूँ। ओके। महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। युवा तपस्वी, महामनस्वी, करुणा के सागर आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी को मेरा नमन। कलकत्ता के पूर्वांचल क्षेत्र में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं सहवर्तिनी साध्वी वृंद को मेरा वंदन। उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम इस जूम के माध्यम से एकत्रित हुए हैं प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 102वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उन्हें भावभीनी वंदना अर्पित करने। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म आषाढ़ कृष्णा 13 विक्रम संवत 1977 के टमकोर में हो। सहज, सुखी और स्वस्थ जीवन की यात्रा के साधन के विषय में महाप्रज्ञ जी प्रतिदिन अपनी अमृत वाणी से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। वे अपने प्रवचनों में उपदेश देते थे एवं नए प्रयोग करने का निमंत्रण मात्र देते रहे। 27 जनवरी 2007 के प्रवचन में महाप्रज्ञ जी ने कहा, सत्य को जानने का प्रयोग करो, परीक्षण करो, कसौटी करो। अपनी मान्यता के अनुसार ही सत्य है, यह सोच भ्रांति है, सच नहीं है। सत्य तो सर्वभौम है, सबका है। जीवन के सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण उपलब्धि है स्वयं को जानना। स्वयं से परिचित होना साधना का प्रथम चरण है। और आज हम ध्यान के द्वारा स्वयं को जानेंगे एवं करुणा का विकास कर सबकी मंगल का भावना का विकास का सार्थक प्रयास करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बेहाला सभा के अध्यक्ष
श्रीमान स्वरूप चंद जी संचेती भी जुड़े हैं एवं अन्य पदाधिकारी भी जुड़े हैं। मैं भाव भरा अभिनंदन करता हूं उनका। और आज की कार्यशाला प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षिका श्रीमती रेणु जी कोठारी के संरक्षण में होगी। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पश्चात मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बेहाला सभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान स्वरूप चंद जी संचेती से कि वह 2 शब्द कहें। तत्पश्चात मैं मंच श्रीमती रेणु जी कोठारी के संरक्षण में रहेगी और वह अपने प्रेक्षा ध्यान की शिविर कार्यशाला स्टार्ट करें। ओम अरम। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। प्रेक्षा उन्नायक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। कोलकाता में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं सैवर्तनी साध्वी वृंद को भाव भरा वंदन। श्री प्रेक्षा प्रशिक्षिका श्रीमती रेणु जी कोठारी, जूम के माध्यम से जुड़े सभी प्रेक्षा साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य महाप्रज्ञ एक नाम ही नहीं, एक चिंतन है, विचार है, विमर्श है। जब जब ये नाम श्रवण होता है तब तब मन आंदोलित हो जाता है उस महान दार्शनिक प्रेक्षा उद्गाता को जानने के लिए। आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा था, स्वयं से स्वयं को देखो, अपने को पहचानो, अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति करो। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रज्ञा का जागरण कर, जैन आगमों का गंभीर अध्ययन कर, प्राचीन जैन साधना पद्धति का एक नया रूप जनमानस के सामने रखा और वह है प्रेक्षा ध्यान। स्वयं से स्वयं को देखना प्रेक्षा ध्यान है। आज हम श्रीमती रेणु जी कोठारी के निर्देशन में इसका अभ्यास करेंगे तथा हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में इसे शामिल कर अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 102वीं जयंती के अवसर पर उस महामनस्वी को सच्चा नमन होगा। आज के इस पावन दिवस पर मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को अपनी तरफ से बेहाला जिन श्वेतांबर तेरापंथी सभा परिवार की तरफ से कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रेक्षा ध्यान को हम अपने जीवन में उतार करके दैनिक दिनचर्या में उसका स्थान रख करके हम अपने जीवन को महाप्रज्ञ जी को सच्चे श्रद्धा सुमन व वंदन अर्पित कर पाएंगे। इन्हीं भावों के साथ में ओम अरहम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी श्रीमती रेणु जी कोठारी, श्रीमती रेणु जी तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।
क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना से। सबके हाथ आनंद केंद्र पर। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सचम। इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी साधकों को, डिग्नेटरीज को मेरा सादर जय जिनेंद्र। विद अ ब्यूटीफुल स्माइल लेट्स बिगिन द सेशन। मैं चाहती हूं कि आप सबसे पहले एक स्माइल करें अपने लिए। सब स्माइल करें, थोड़ा सा और मुस्कुराए। ब्यूटीफुल, ओके। आचार्य श्री ने एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है, संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। आध्यात्म का रहस्यमय सूत्र है संबंधातीत होना। लेकिन क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, इसका विकास कैसे होगा? ये होगा संयम के अभ्यास से। सैकड़ों समस्याओं का समाधान है संयम या आत्मनियंत्रण। आप बीमार हैं तो आहार का संयम, लड़ाई झगड़ा हो तो वाणी का संयम, मन में नकारात्मक विचारों से परेशान हो तो मन का संयम करें, धन का संयम करें, अनावश्यक घूमने का संयम करें। जीवन मरण के रहस्यों को समझने के लिए, आत्मा के रहस्यों को समझने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जीवन जीने की कला हम सीखेंगे, आत्म साक्षात्कार करने के पथ पर अग्रसर होंगे प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ध्यान की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम जो अपने धारणाएं बना चुके हैं, जो मिथ हम अपने दिमाग में बना चुके हैं, उन सबको हम डिलीट करें। जैसे मैं ध्यान नहीं कर सकता, प्रेक्षा ध्यान क्लास में तो घंटों घंटों बैठना पड़ता है, आसन प्राणायाम करना पड़ता है, ये वो जो भी हमारी ध्यान की जो धारणाएं हमने बनाई है, उन सबको हम एक साइड में रखकर नए सिरे से एक नई शुरुआत करें। एबीसीडी से ध्यान सीखना शुरू करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मॉन्टेसरी क्लास में जब बचपन में हम पहली बार स्कूल गए थे और हमने एबीसीडी सीखा या 2 1 2 सीखा, ए फॉर एप्पल सीखा, तो वो आज भी हमारे मन में, मस्तिष्क में अच्छी तरह से रिकॉर्डेड है। उसको हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने वो सीखा तब हमारा ब्रेन कोरा कागज था, वहां पर कुछ धारणाएं नहीं थी। तो जब हम ध्यान अब सीखना शुरू कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी पुरानी धारणाएं हैं, जो भी आप ध्यान के बारे में अपने मिथ बना चुके हैं अपने दिमाग में, उन सबको परे रखकर नए सिरे से ध्यान शुरू करें, ध्यान सीखना शुरू करें। एक राज की बात मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ नहीं करना ही ध्यान है। कुछ नहीं करना ही ध्यान है। करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, बहुत सारे प्रयोग हैं। लेकिन कुछ नहीं करना ही ध्यान है। कुछ नहीं करना ध्यान है तो फिर इतना सब कुछ क्यों करना? हमें आसन प्राणायाम भी करना, प्रयोग भी करना, ये करो वो करो, ये सारी चीजें हमें क्यों करनी है? क्योंकि उस निर्विचार और निर्विकल्प स्थिति तक पहुंचने के लिए, जहां हमें पहुंचना है, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जो टूल्स आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें दिए हैं, उन सबको हम फॉलो करके, उन सबको हम सीख के जब हम आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन निश्चित हम उस निर्विचार और निर्विकल्प स्थिति तक ध्यान की अवस्था में पहुंच पाएंगे। तो आज हम जानेंगे ध्यान एक्चुअल में है क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल में जो कोरोना का पैंडेमिक जो सिचुएशन चल रहा है, इससे 90% लोगों को ये जागरूकता तो आ गई है कि मेडिटेशन, योगा, ये सब हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, उसको बढ़ाना, उसको बूस्ट अप करना, स्वस्थ रहना, शुद्ध आहार यानी जो सात्विक भोजन है उसको करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में कितनी मायने रखती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हम अब जान चुके हैं। ध्यान का आदि और अंत क्या है? ध्यान का आदि है कायोत्सर्ग और ध्यान का अंत है कायोत्सर्ग। यानी कायोत्सर्ग से ही ध्यान शुरू होता है और कायोत्सर्ग से ही ध्यान खत्म होता है। अगर आपका कायोत्सर्ग अच्छे से सध जाता है तो फिर आप आराम से ध्यान की यात्रा कर सकते हैं।
कैसे स्वभाव परिवर्तन होता है, कैसे हीलिंग प्रोसेस होता है, यानी जो हमारी व्याधि आदि और उपाधि है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल जो डिसीजेस हैं, उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, और ध्यान की उपलब्धियां क्या है। अगर इस एक टॉपिक पर, ध्यान की उपलब्धियों पर अगर हम बोलना शुरू करें तो 2 घंटे इसी में बीत जाएंगे, इतनी सारी ध्यान की उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेक्षा ध्यान का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ प्रेक्षा ध्यान। ध्यान शब्द को अगर आप डिफाइन करें या समझना चाहें तो ये आदि अनंत है, यानी जो प्रभु तीर्थंकर भगवान प्रभु की जो प्रतिमाएं होती हैं, जो हजारों हजारों वर्ष पुरानी है। अगर आप इतिहास जाने गिरनार जी का, तो जो प्रतिमा वहां पे भगवान की है वो हजारों वर्ष पुरानी है, और वो किस मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ध्यान साधना है वो बहुत पुरानी है, हजारों हजारों वर्ष पुरानी है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान 1975 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा इसको नए सिरे से, नए रूप में इंट्रोड्यूस किया गया जयपुर में। ध्यान के आगम में 2 शब्द मिलते हैं, विपश्यना और प्रेक्षा। क्योंकि विपश्यना ऑलरेडी बुद्धिज्म में प्रचलित है, तो इस ध्यान पद्धति का नाम रखा गया प्रेक्षा ध्यान, और उसको जनमानस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। प्रेक्षा ध्यान का आधार क्या है? प्रेक्षा ध्यान का आधार है जैन दर्शन, भगवान महावीर की साधना, संवर और निर्जरा की साधना। भगवान महावीर के जो 12.5 वर्ष की जो ध्यान साधना थी, उसके आधार पर प्रेक्षा ध्यान को निर्मित किया गया। प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य क्या है? प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि यानी हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, उसके ऊपर कर्मों का आवरण है, वो उन कर्मों के आवरण को हटाना, उन कर्मों का क्षय करना, और जो हमारी चेतना का शुद्ध स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से भरपूर है, उस चेतना की रश्मि को, उस चेतना को प्रकट करना, कर्मों को क्षय करके चेतना के शुद्ध स्वरूप को बाहर प्रकट करना, यही प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है। ध्यान एक घटना है, जैसे ध्यान कोई काम नहीं है जिसे हम करते हैं, ध्यान एक घटना है जो घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्यार करना नहीं होता है, एक माँ और बच्चे के बीच में करना नहीं होता है। माँ को अगर पूछना नहीं पड़ता है कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, वहां पे प्यार ऑलरेडी है, माँ और बच्चे के बीच में ऑलरेडी प्यार है, वहां पे प्यार करना नहीं होता है। ऐसे ही ध्यान हमारे अंदर ऑलरेडी है, उसको सिर्फ हमने जाना नहीं है, उसके प्रति उसका जो अनुभव है वो हमें अभी तक किया नहीं है। तो जब ध्यान की यह घटना घटित होगी तब हमें इसका अनुभव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो बोलते हैं ध्यान से चलाओ, जब हम खाते हैं तो बोलते हैं ध्यान से खाओ, बच्चे खेल रहे हैं तो हम बोलते हैं ध्यान से खेलो। तो ये ध्यान है क्या? ध्यान है वर्तमान क्षण में जीना। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसको पूरी जागरूकता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे भाव क्रिया के साथ सतत अप्रमत्त रहकर उस क्षण को उस काम में लगाना, यानी हम जो काम कर रहे हैं वहां पर पूरी जागरूकता से करना, ध्यान से करना ही ध्यान है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आज 1 घंटा ध्यान का प्रयोग करेंगे और हम प्रेक्षा ध्यान सीख जाएंगे, तो ये गलत है। प्रेक्षा ध्यान 1 घंटा पद्मासन लगाकर, आंखें बंद कर बैठकर कोई प्रयोग करना ध्यान नहीं है। 24 घंटे जागरूक रहना, एकाग्रता से जो कार्य हम कर रहे हैं वो करना, वही ध्यान है। वर्तमान क्षण में जीना ही ध्यान है, यही ध्यान की डेफिनेशन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अनुत्तर योगी थे, उनकी चैतसिक निर्मलता और एकाग्रता अद्भुत थी। वे आत्मलीन रहने वाले विलक्षण महापुरुष थे। ऐसे ध्येयनिष्ठ व्यक्ति की हर क्रिया साधना बन जाती है। उनका उठना, बैठना, चलना, खाना, बोलना, हर क्रिया साधना बन जाती है। हमारे 24 घंटे की क्रिया में हम 6 काम, जो बेसिक 6 काम करते हैं, वो है खड़े रहना, बैठना, चलना, बोलना, खाना और सोना। अब आप सोचेंगे कि क्या प्रेक्षा ध्यान में हमें खाना सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे? ये तो हम बचपन में कर चुके हैं, यानी जब हम 6 महीने के थे तब हमने बैठना सीखा था, जब हम 1 साल के हुए तब हमने चलना सीखा, और फिर धीरे धीरे हमने बोलना सीखा,
माँ की गोद में हमने अच्छे से सोना सीखा, नींद लेना सीखा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम ये जो बेसिक क्रिया है हमारी, ये जो 6 बेसिक क्रिया है, इनको हमने बेभान होकर करना शुरू किया। यानी जब हम चलते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे मेहमान आए हैं, आप बोलेंगे आइए, पधारिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। लेकिन हमारा माइंड कहाँ रहता है? अरे यार, घर में फ्रूट्स तो है ही नहीं, आ गए। मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। हम जो ये 6 क्रिया कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो या तो आप खड़े रह के करेंगे, या आप बैठ के करेंगे, या आप बोल के करेंगे। अगर आप किचन में खाना भी बना रहे हैं, तो आप खड़े रह के बनाएँगे या बैठ के बनाएँगे। अगर आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो बैठ के करेंगे। यानी जो ये 6 बेसिक क्रिया है, चलना, बैठना, खड़े रहना, बोलना, खाना और सोना, ये 6 बेसिक क्रिया अगर हमारी ध्यानपूर्वक हो, पूरी एकाग्रता से हो, तो 24 घंटे हम ध्यान की साधना कर सकते हैं। हमारा जीवन एक साधना बन जाएगा। यहाँ पर परीक्षा ध्यान में सिर्फ 1 घंटा ध्यान करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे जीवन को, हमारे पूरे जीवन को, एक-एक क्षण को साधनामय बनाना है। जब हम ये सारी क्रियाएँ पूरी जागरूकता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, तो हमारे 24 घंटे ध्यान में बीतते हैं। राग द्वेष को शांत रखने वाला ही साधना के आनंद को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान से एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान से निर्मलता आती है। अतः दोनों का समन्वय जरूरी है, ज्ञान भी और प्रैक्टिकल प्रयोग भी। हमें ज्ञान भी लेना जरूरी है कि ध्यान के बारे में क्या-क्या उसकी नॉलेज है, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीजें, इनका ज्ञान लेना भी बहुत जरूरी है और उसके साथ-साथ उसका प्रयोग करना भी जरूरी है। सिर्फ किताबें पढ़कर या वीडियोस देखकर या प्रवचन सुनकर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उससे आपका ध्यान नहीं सधेगा। एक्चुअल में जब आप प्रयोग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान का प्रयोग करेंगे, तभी आपके अंदर ध्यान घटित होगा। हमारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद और अनंत शक्ति का भंडार है, लेकिन उसके ऊपर कर्मों का आवरण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिद्ध आत्मा जो होती है, अरिहंत की आत्मा जो होती है, हमारी आत्मा जो होती है, या एक चींटी की आत्मा जो होती है, आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं होता। आत्मा सबकी सेम होती है, सबकी निर्मल होती है, पवित्र होती है। लेकिन उसके ऊपर डिफरेंस क्या होता है? जो कर्मों का आवरण है, हमारे जो कर्म है, 8 कर्म है, जैसे अरिहंत के 4 कर्म क्षय हो चुके हैं, सिद्ध भगवान के 8 कर्म क्षय हो चुके हैं। तो जब हमारे 8 कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे, तो हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तब तक जो हमारे कर्म है, उनको हम कैसे क्षय करें? तो निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं, आप में से कोई बता सकता है निर्जरा के 12 भेद कौन से हैं? एनीवन? यस, आप अपने आप को अनम्यूट करके बताएं। हाँ। अनसन, उद्नोद्री, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलिलता, कायोत्सर्ग, ध्यान, हाँ, बीच के सॉरी, थोड़े छूट गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो उत्कृष्ट है, जो 10th और 11th है, वो है ध्यान और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी सब कुछ छोड़ना, कायोत्सर्ग यानी काया को छोड़ना, व्युत्सर्ग यानी सब कुछ छोड़ना, सब कुछ छोड़ना। तो जो निर्जरा के 12 भेद भगवान महावीर ने हमें बताए हैं, उनमें सबसे उत्कृष्ट है ध्यान और व्युत्सर्ग। ध्यान और व्युत्सर्ग से हम अपने सारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। कर्म क्षय के 12 भेद में ध्यान उत्कृष्ट है और ध्यान में कर्म विस्फोटक की अपार शक्ति विद्यमान है। अभी हम यहाँ पर श्वास का एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। विनोद जी, आपके पास वीडियो रेडी है श्वास का? श्वास 2 प्रकार का होता है, एक होता है सहज श्वास और एक होता है प्रयत्न जनित श्वास। सहज श्वास जो होता है, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मली एक व्यक्ति की 1 मिनट में 17 या 15 से 18 तक की जो ब्रीदिंग होती है, काउंटिंग होती है, वो होती है। जब हम आवेग और आवेश के मोड में होते हैं, यानी गुस्सा करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, या जब हम कोई भारी वजन उठा रहे हैं, या जो बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, या संभोग में है, तब हमारी जो श्वास की गति होती है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। वो बढ़ते-बढ़ते 30, 40, 50 या 80 तक भी चली जाती है। तो वो होता है हमारा छोटा श्वास, फास्ट श्वास। इसको हम प्रयत्न से दीर्घ कर सकते हैं।
और प्रयत्न से हम दीर्घ श्वास को ही सहज श्वास बना सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि दीर्घ श्वास ही हमारा सहज श्वास होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ 4 श्वास में हम मतलब 1 मिनट में 4 श्वास हम कर सकते हैं। तो जब हम प्रयत्न से इन श्वास की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे लंबा श्वास लेना और धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ना, तो दीर्घ श्वास ही हमारा सहज श्वास बन जाता है। अब हम एक प्रयोग करेंगे श्वास का। विनोद जी वीडियो शेयर करें प्लीज। कौन सा वाला रेणु जी, मतलब वो ब्रीदिंग वाला। तो ढूंढना पड़ेगा, आप मतलब उनको नितिन क्या जी बोलते आपके पास है? हैं? आपको भेजा था मैंने। संदीप जी ब्रीदिंग वाला जो वीडियो भेजा था वो है आपके पास? हाँ, मैं एक सेकंड। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि श्वास का और ध्यान का बहुत गहरा संबंध है। अगर आप श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं, किसी भी ध्यान पद्धति में आप जाएं, तो हम श्वास का ही आलंबन लेते हैं। श्वास का ही आलंबन क्यों लेते हैं? क्योंकि श्वास ही एक ऐसा आलंबन है जहां हम राग और द्वेष से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, जब हम कोई चीज देखते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा है या ये अच्छा नहीं है। जब हम कुछ खाते हैं तो इमीडिएटली हमारे ब्रेन में हम एक डिसीजन बना लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। किसी भी चीज से जब हम जुड़ते हैं हमारी पांचों इंद्रियों से, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना, तो हम इमीडिएट अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये अच्छे और बुरे से जब हम जुड़ते हैं तो हम राग द्वेष से अटैच हो जाते हैं, राग द्वेष से बंध जाते हैं। और श्वास के आलंबन से जब हम ध्यान में प्रवेश मेरे करते पास कैसा है कि मैंने किसी ने बोला नहीं तो मैंने रेडी नहीं रखा है। हैं तो कोई बात, हम प्रैक्टिकली कर लें। तो अब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। सब सीधे बैठे, सब सीधे बैठे, आंखें कोमलता से बंद करें। लंबी गहरी श्वास। Take a deep inhalation. Complete exhale. Take a deep inhalation. Complete exhale. गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़े। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़े। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। जब हम श्वास लेते हैं तो पेट की मांसपेशियां फूलती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। गहरा लंबा श्वास लें, take a deep breath in, complete exhale। अपने आप को म्यूट करें जिसका भी माइक ऑन है। गहरा लंबा श्वास ले, complete exhale। Take a deep breath in, complete exhale।
Take a deep breath in. Complete exhale. धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। बोधिक महावीर स्वामी बैठे। संदीप जी सबको म्यूट कर दे प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे आंखें खोले। तो जब हम ये 2 मिनट का प्रयोग करते हैं दीर्घ श्वास का, तब भी हमें इतनी शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो इमेजिन करें जब आप 24 आवर्स ध्यान में होंगे, जब दीर्घ श्वास ही आपका सहज श्वास बन जाएगा, तो आप कितने आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। जब हम दीर्घ श्वास करते हैं, जब हमारी श्वास की गति मंद और शांत होती है, तो हमारे ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो ब्रेन वेव्स है, वो अल्फा रेंज में चली जाती है और वहां पर हमें शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो एक सेंटेंस में अगर हम कहें तो श्वास और ध्यान का बहुत गहरा संबंध है। श्वास प्रेक्षा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जब भी आपको मौका मिले प्लीज इसको पढ़ने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें और इसके प्रयोगों को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम है तो हम श्वास के ऊपर इतना नहीं डिस्कस कर पाएंगे। आप में से कई लोग सिर्फ यहाँ पर इस सेशन में इसलिए अटेंड हुए हैं कि आपके ग्रुप मेंबर्स ने आपको लिंक भेजा है, तो आपने सोचा होगा चलो प्रेक्षा ध्यान को सीख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो कई सालों से निरंतर प्रेक्षा ध्यान से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको सही माध्यम नहीं मिला जुड़ने का। और कई लोग ऐसे भी हैं जो निरंतर प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर भी रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, उसको बेनिफिट्स को जानते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट है। आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं सम्यक्त्व के भाव को छुआ है। आपके भीतर, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो समकित को पाना चाहता है। एक बार जो आपने ध्यान का मार्ग चुना है तो अब इसे छोड़ना नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी कुंजी है, कुंजी यानी चाबी, एक ऐसी चाबी है जिससे हर रोज आप एक नए रहस्य के दरवाजे को खोलेंगे, नया रहस्य आपके सामने उद्घाटित होगा। एक चाबी से हम एक ही ताला खोल सकते हैं, राइट? लेकिन प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी चाबी है जिससे हर रोज एक आप नया दरवाजा खोलेंगे, नया ताला खोलेंगे। जब भी आप प्रेक्षा ध्यान की क्लास अटेंड करेंगे या प्रेक्षा ध्यान का जो प्रयोग है वो आप करेंगे, तो हर दिन आपको एक नया रहस्य समझ में आएगा। We have so much that we don't know about ourselves. हमें अपने बारे में ही इतनी सारी चीजें हैं जो अभी तक पता नहीं है। तो जब हम ध्यान साधना करेंगे तो हमें अपने बारे में पता चलेगा, हम अपने स्वयं के बारे में जानना शुरू करेंगे, हम स्वयं सत्य को खोजना शुरू करेंगे। भगवान महावीर ने सत्य को ऑलरेडी बता दिया है, यानी जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको सब पता होता है, सत्य को उन्होंने प्राप्त किया होता है, केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया होता है, उन्होंने सारी चीजें हमें बता दी है। लेकिन यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान में हम क्या बोलते हैं, स्वयं सत्य खोजो। सबका सत्य अलग होता है, आपका सत्य अलग है, मेरा सत्य अलग है। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम स्वयं सत्य को खोजते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा आपके पास रत्न मिला है जिससे आप हर दिन नए राज को, नए सत्य को खोज सकते हैं। ध्यान करने का, साधना करने का एक प्रयोजन है। अभी आप इसको ध्यान से सुनना। अभी तक आपने अगर नहीं सुना है ध्यान से कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ध्यान करने का, साधना करने का एक प्रयोजन है, एक पर्पस है। जीवन की बुराइयां समाप्त होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, आदमी बदलना चाहिए, आदतें बदलनी चाहिए, एक व्यक्ति का पूरा रूपांतरण होना चाहिए, व्यक्तित्व बदलना चाहिए, पता चले कि यह धार्मिक है। चरित्र, व्यवहार और स्वभाव, इन तीनों को बदलने के लिए केंद्रों को खोजना है। केंद्र यानी क्या? जो हमारे साइंस में हम साइकिक सेंटर्स बोलते हैं, या हठ योग की भाषा में जिन्हें हम चक्र बोलते हैं, और प्रेक्षा ध्यान की भाषा में जिन्हें हम चैतन्य केंद्र बोलते हैं। तो चरित्र, व्यवहार, स्वभाव, इन तीनों को बदलने के लिए हमें चैतन्य केंद्रों को खोजना होगा। ग्रंथियां स्त्राव करते हैं, हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, वे रसायन मस्तिष्क में जाते हैं और नाड़ी संस्थान
में जाकर मिलते हैं, बिंदुओं को उत्तेजित करते हैं, यानी जो हमारे चैतन्य केंद्र है उनको उत्तेजित करते हैं और उनके आधार पर मनुष्य का चरित्र या व्यवहार निर्मित होता है। अगर हम इन सब चीजों को जानेंगे नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा? इन सब चीजों को पहले हमें समझना होगा, जानना होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, चैतन्य केंद्र क्या होते हैं, इनका स्त्राव कैसे होता है, आवेग और आवेश की स्थिति में कौन सा ग्लैंड हमारा सक्रिय होता है, ध्यान में हमारा कौन सा ग्लैंड सक्रिय होता है, ध्यान से हम कैसे इन आवेग और आवेश और इन स्त्रावों को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन समूचे जगत का स्वभाव है। हर पदार्थ प्रति क्षण बदल रहा है। अगर आप अपने बचपन की फोटो देखें और अभी आप अपने आप को देखें तो क्या आप सेम है? बिल्कुल नहीं, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। हमारी जो ये बॉडी है प्रति क्षण, ईच सेल, हर एक कोशिका हमारी बॉडी में प्रति क्षण बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। ऐसे नहीं कि हम बचपन से इमीडिएटली यहाँ पर चेंज हो गए। एवरी सेकेंड जो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कोशिकाएं बदल रही है, स्किन बदल रही है, बाल बदल रहे हैं, हर एक शरीर का जो अवयव है वो बदल रहा है। इस बदलाव के कारण ही हम आज चेंज हो रहे हैं। और ये चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हम इसको अपने अनुसार कर सकते हैं, इन सारी चीजों को जब तक हम जानेंगे नहीं, हम परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रेक्षा ध्यान के 8 अंग हैं। कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, अनुप्रेक्षा, अंतर यात्रा और भावना। प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग हैं, आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। अभी आप सोचेंगे कि हम तो यहाँ पर ध्यान सीखने आए हैं, प्रेक्षा ध्यान की क्लास में हमें आसन क्यों कराए जाते हैं, एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है, प्राणायाम क्यों कराया जाता है, हमें सीधा ध्यान क्यों नहीं कराते? ये सारी चीजें जानना क्यों जरूरी है? हमें तो सिर्फ ध्यान करना है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा टेस्ट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब जहां पर बैठे हैं वहां पर खड़े हो जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, जहां पर भी बैठे हैं आप खड़े हो जाएं। सबको करना है, ये एक टेस्ट है, आप अपने आप को जानने के लिए स्वयं को खोजें। ठीक है, सब खड़े हो गए? अब बिना हाथों का सहारा लिए नीचे पालकती मारकर बैठे, बिना हाथों का सहारा लिए नीचे पालकती लगाकर बैठे। वेरी गुड, बहुत सारे लोग कर पाए। अब बिना हाथों का सहारा लिए वापस खड़े हो जाए, बिना हाथों का सहारा लिए वापस खड़े हो जाए। वेरी गुड। तो जिन्होंने बिना हाथों को टच किए बैठ पाए और खड़े हो पाए वो चैट बॉक्स में लिखे आई कैन, और जो नहीं कर पाए वो लिखे आई विल। आई कैन, आई विल। जो कर पाए वो लिखे आई कैन, जो नहीं कर पाए वो संकल्प करे कि मैं कर सकता हूं, मैं फ्यूचर में इसको करके बताऊंगा। यानी जब हम बिना हाथों का सहारा लिए खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ है। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आसन प्राणायाम करने की बहुत बहुत जरूरत है। अगर आप ठीक से खड़े नहीं रह पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप ध्यान के लिए मतलब ध्यान करने के लिए अभी तैयार नहीं। तो आपको आसन करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आहार को चेंज करना है, अपनी दिनचर्या को चेंज करना है और अपने आप को इस काबिल बनाना है। आई विल जो आज आपने टाइप किया है, आपको ये संकल्प लेना है कि मैं अपने आप को इतना परफेक्ट बनाऊंगा, इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि मैं ध्यान साधना में आगे बढ़ सकता हूं। तो अभी हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। कायोत्सर्ग का प्रयोग करने से पहले हम थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि कायोत्सर्ग होता। आप सब बैठ सकते हैं प्लीज, सॉरी मैंने आपको बोला नहीं, जो खड़े हैं बैठ सकते हैं आराम से। पहले हम जानेंगे कि कायोत्सर्ग है क्या। कायोत्सर्ग में जैसे अभी मैं बोलूंगी कि आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो इमीडिएटली क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मन है, वो स्मृति, कल्पना और चिंतन में चला जाता है। हम या तो पास्ट में चले जाते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, थाउजेंड्स थॉट्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जो कभी नहीं सोचा हमने, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया हो, अगर आप माला फेरने बैठते हैं तो आपका ध्यान माला में नहीं रहता है, आपका ध्यान पास्ट और फ्यूचर में होता है। तो इसको जब हम बोलेंगे, जब हम सजेशन देंगे आंखें कोमलता से बंद,
तो उसके बाद करना क्या है आपको अगर नहीं पता है तो आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कायोत्सर्ग का जो सबसे पहला चरण है वहां हम संकल्प करेंगे। संकल्प इतना शक्तिशाली है कि जब हम कोई संकल्प करते हैं, फॉर हमारे डे टू डे लाइफ में भी अगर हम कोई संकल्प करते हैं तो हमारा 50% काम वही हो जाता है। जैसे आपने ठान लिया कि मुझे कल ये काम करना है, आपके ब्रेन में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को संकल्प कर लिया है कि मुझे ये करना है, तो 50% काम वही हो जाता है। तो ध्यान में जब हम कायोत्सर्ग में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम संकल्प करते हैं। संकल्प एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलते हैं नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम, मतलब वो जो हम संकल्प जो हम मंत्र बोल रहे हैं वो हमारे स्थूल शरीर पर ही असर नहीं कर रहा है, तो वो हमारे सूक्ष्म जगत में कैसे जाएगा। तो जब हम तत्सूत्री का संकल्प लेते हैं तो एकदम स्ट्रांग होके, दृढ़ होके, पूरी एकाग्रता के साथ जब हम संकल्प करते हैं तो आधा कायोत्सर्ग तो हमारा वहीं पे सज जाता है। फिर हम करेंगे ताड़ासन, जिसमें हम अपने पूरे शरीर को ताड़ की तरह स्ट्रेच करेंगे, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। जितना अच्छा ताड़ासन उतना अच्छा ध्यान, यानी जब हम ताड़ासन करेंगे तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रेस है उसको हम रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। फिर हम मुद्रा का चुनाव करेंगे। मुद्रा में 2 मुद्राएं हैं। एक है वीतराग मुद्रा, जिसमें हम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे और नाभि के नीचे स्थापित करेंगे। एक है ज्ञान मुद्रा, जिसमें हम इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाएंगे ऐसे, और बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर स्थापित करेंगे। तो इन दोनों मुद्रा में से कोई एक मुद्रा का आप चुनाव कर सकते हैं। फिर हम शरीर में भारीपन और हल्केपन का अनुभव करेंगे। यानी जब आपको सजेशन मिले कि अनुभव करें कि शरीर भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, भारी हो रहा है, तो आपको ऐसे अनुभव करना है जैसे आपका शरीर इतना भारी हो गया है कि आप जमीन के अंदर धंस जा रहे हैं, इतना भारी हो गया है। और जब हम हल्केपन का अनुभव करते हैं तब आपको ऐसे अनुभव करना है कि मैं एकदम कॉटन के जैसे, एक फेदर के जैसे हल्का हो गया हूँ और हवा में उड़ रहा हूँ। इस भारीपन और हल्केपन का अनुभव करना है। फिर हम बॉडी पार्ट्स को शिथिल करेंगे, दाएं पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। इसमें हम सारे अवयवों का नाम लेंगे। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप जितना आप कर सकते हैं उतना करें। अगर कोई नहीं कर पा रहा है, बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप अपने ध्यान को केवल श्वास पर टिका लें, यानी श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं, हो सकता है आप नींद में भी जा सकते हैं, हो सकता है आप पास्ट और फ्यूचर में जाएं। तो जैसे ही आपके विचार आए, आप उसको वापस पकड़ के लाएं कि नहीं, मुझे अब ध्यान करना है। ये मन जो है बहुत चंचल है। मन को हमने मतलब कवि ने या जो गीतकार है उन्होंने मन को बंदर से कंपेयर किया है, यानी 1 सेकंड में ये यहाँ रहता है, 1 सेकंड में कहीं और चला जाता है। तो मन के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, उसको बहुत प्यार से, जैसे हम एक बच्चे को सहलाते हैं, उसको समझाते हैं तो वो समझ जाता है, वैसे ही अपने मन के साथ भी जबरदस्ती नहीं करना। जैसे ही आप पास्ट में जाते हैं उसको वापस पकड़ के लाएं। जैसे अभी अब लॉकडाउन खुल गया है तो आपके मन में विचार आएंगे कि मुझे दुकान खोलनी है, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, या लेडीज है तो अब मुझे किचन में जाना है, अभी ब्रेकफास्ट बनाना है। मतलब जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे ये सारे थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आपका मन आगे और पीछे भागना शुरू हो, उसको बड़े प्यार से समझाओ कि नहीं, मैं अभी ध्यान में बैठा हूँ, अभी मुझे ध्यान करना है, मुझे इन विचारों में नहीं जाना है। वापस वो जाएगा, वापस उसको पकड़ के लाना है, वापस जाएगा, वापस पकड़ के लाना है। तो इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करते करते, ये कोई एक दिन में होने वाला प्रयोग नहीं है, इसके लिए लंबी साधना करनी होती है। डेली जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एक क्षण ऐसा आएगा, हो सकता है किसी को 6 महीने लगे, हो सकता है किसी को आज ही हो जाए, हो सकता है किसी को 6 घंटे लगे। इसका कोई कालमान नहीं है, माप नहीं है कि कब होगा, कभी भी हो सकता है। जब आपकी एकाग्रता सध जाएगी तब आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर हम जब दाएं पैर के अंगूठी से लेकर मस्तिष्क तक प्रत्येक अवयव को शिथिल करके फिर हम सुझाव देंगे कि पूरा शरीर शिथिल हो गया है। उसके बाद हम भेद विज्ञान का अनुभव करेंगे। भेद विज्ञान में हम मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं का अनुभव करेंगे। यानी ये जो शरीर है ये यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर सोया हुआ है, और मैं आत्मा हूं जो इस शरीर को देख रही हूँ। आप अपने आप को ऐसे अनुभव करें जैसे ये शरीर मर गया है, ये शरीर यहाँ पर मृत शरीर पड़ा है और मैं जो आत्मा हूँ वो उसको देख रहा हूँ। उस भेद विज्ञान का हम अनुभव करेंगे। और फिर लास्ट में हम पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करेंगे, जिससे हम कायोत्सर्ग से वापस लौट कर आएंगे। वहां पर 3 दीर्घ श्वास जैसे ही आप लेंगे, आप वापस कायोत्सर्ग से लौट आएंगे।
तो ये कायोत्सर्ग का प्रोसीजर है। उसके बाद हम लास्ट में वंदे सच्चम करेंगे। वंदे सच्चम यानी हम यहाँ पर सत्य को वंदन करते हैं। यहाँ पर किसी देव गुरु या धर्म को हम वंदन नहीं कर रहे हैं, किसी भगवान को वंदन नहीं कर रहे हैं, किसी रिलीजन को हम वंदन नहीं कर रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान पूरे मतलब मैन काइंड के लिए बनाया, ह्यूमन काइंड के लिए बनाया है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तेरापंथी के लिए है, सिर्फ जैन के लिए है। तो हम यहाँ पर भगवान महावीर को वंदन कर रहे हैं या किसी गुरु को वंदन कर रहे हैं। यहाँ पर जो ध्यान में हमें सत्य उपलब्ध हुआ है, जिस सत्य को हमने जाना है, जिस ज्ञान को हमने जाना है, उस सत्य को, उस सच को हमें वंदन करना है। तो लास्ट में हम वंदे सच्चम का 3 बार उच्चारण करेंगे। तो सभी कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएं। हम 30 मिनट्स का कायोत्सर्ग करेंगे। ये आप खड़े रहकर कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं और लेट कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लेट कर करें, वहां पर आप लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर लें और लेट कर कायोत्सर्ग करें। और जो ऑलरेडी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कर चुके हैं वो बैठकर करें। अगर कोई खड़े रहकर भी करना चाहते हैं तो उत्कृष्ट ध्यान का प्रयोग खड़े रहकर होता है। खड़े रहकर ध्यान करना उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट कायोत्सर्ग खड़े रहकर करना है। तो कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएं, सब सीधे बैठे। एक बार खड़े होकर हम संकल्प करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। संकल्प करें, मेरे बाद रिपीट करें। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायचित्त कर्णेनम विस्सोही कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावानम कम्माणम निगायनठाय थामी कौसगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। मैं 30 मिनट से आधे घंटे के बाद कायोत्सर्ग से लौट आऊंगी। ताड़ासन, सीधे दोनों हाथ सातल के पास, उंगलियों को ऐसे फंसा लें, दोनों हाथों को उंगलियों को फंसा लें और हाथों को स्ट्रेच करें। विनोद जी ताड़ासन का पिक्चर्स शेयर करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों को ऊपर ले आए। पूरे शरीर को तनाव दें, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें, और तनाव दें और तनाव दें। श्वास भरते हुए एड़ियां नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर से करेंगे। दोनों हाथों को मिला लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों एड़ियां ऊपर, पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें और तनाव दें। छत को छूने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए एड़ियां नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। लास्ट टाइम एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एड़ियां ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों एड़ियां नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। ठीक है, स्क्रीन को हटा दीजिए। अब जो लेटकर करना चाहते हैं वो अपनी जगह पर लेट जाएं। जो बैठकर करना चाहते हैं वो ध्यान आसन का चुनाव करें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। और जो खड़े रहकर करना चाहते हैं, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा आधे फुट का फासला रहे, दोनों हाथ सातल से सटे हुए। ठीक है, तैयार है ध्यान के लिए, कायोत्सर्ग के प्रयोग के लिए? यस। आंखें कोमलता से बंद। प्रतिमा की भांति अडोल रहे।
पूरे कायोत्सर्ग काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। पूरे कायोत्सर्ग काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर भारी हो रहा है और भारी हो रहा है और भारी हो रहा है। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर हल्का हो रहा है और हल्का हो रहा है और हल्का हो रहा है। शरीर के प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। श्वास मंद और शांत। श्वास मंद और शांत। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें अंगूठा शिथिल हो रहा है। अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें अंगूठा शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार प्रत्येक अंगुली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल तथा कटी भाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से कटी भाग तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें
दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अनुभव करें, दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। पेड़ों का पूरा भाग एब्डोमेन रीजन, पेट के भीतरी अवयव, दोनों गुर्दे, किडनी, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, अग्नाशय पेनक्रियाज, पक्वाशय ड्यूडोनम, आमाशय स्टमक, तिल्ली स्प्लीन, यकृत लिवर, तनुपट डायाफ्राम, पेट के सारे भीतरी अवयव शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। छाती का पूरा भाग, हृदय, हार्ट, दायां फेफड़ा, लंग्स, पसलियां, रिब्स, बायां फेफड़ा, पसलियां, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना, गर्दन, पीठ का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा, इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा, दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं, शिथिल
हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। कंठ, वोकल कॉर्ड, स्वर यंत्र, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाई कनपट्टी, दायां कान, बाई कनपट्टी, बायां कान, दाई आंख, बाई आंख, ललाट और सिर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। अब भेद विज्ञान का अनुभव करें।
जैसे मथनी से छाछ और मक्खन को पृथक किया जा सकता है, वैसे ही शिथिलता के द्वारा शरीर और आत्मा को पृथक किया जा सकता है। शरीर अचेतन है, आत्मा चैतन्य है। शरीर अचेतन है, आत्मा चैतन्य है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। 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 मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें, पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। 3 दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में
सक्रियता का अनुभव करें। जो लेटे हैं और खड़े हैं, धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। दाईं करवट लेकर धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण। श्वास भरें, श्वास छोड़ते समय वंदे का उच्चारण और सच्चम का उच्चारण करते हुए मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ध्यान का कोई भी प्रयोग करने के बाद तुरंत उठना नहीं है, पैर को जमीन पे नहीं लाना है, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ बोलना नहीं है। कुछ क्षणों के लिए एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें। मस्तिष्क में हो रहे वाइब्रेशंस का अनुभव करें। जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, जो सत्य को आपने प्राप्त किया है, या जो एनर्जी आपको मिली है, उसका अनुभव करें। जैसे हम स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा कोच है, वो आपको बताएगा कि स्विमिंग ऐसे करना है, पहले बॉडी को फ्लोट करना है, फिर धीरे-धीरे पैरों को चलाना है, फिर हाथों को चलाना है, फिर सिर को पानी से बाहर निकाल कर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। कितना भी अच्छा वो आपको बता दे, कितना भी अच्छा वो आपको समझा दे, और फिर आपको पानी में धक्का दे दिया जाए, तो क्या आप स्विमिंग कर पाएंगे? यस और नो? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं किया है पानी में उतरकर। तो जब हम रोज पानी में उतरेंगे, रोज हम फ्लोटिंग सीखेंगे, रोज हम हाथों को फ्लिप करना या पैरों को फ्लिप करना सीखेंगे, धीरे-धीरे हम स्विमिंग सीख जाएंगे। इसी तरह ध्यान में भी हमें रोज डुबकी लगानी होगी। सिर्फ जानने से, सिर्फ सुनने से या सिर्फ समझने से हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। जब हम डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब हम इसके प्रयोग करते हैं, तो जिस तरह हम पानी में डुबकी लगाए बिना स्विमिंग नहीं सीख सकते, उसी तरह ध्यान की गहराई में डुबकी लगाए बिना हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते और इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे यही विनंती है कि एक बार जो आपने प्रेक्षा ध्यान को अभी चुन लिया है, तो आप इसको छोड़िएगा मत। जहाँ भी आपको सीखने का मौका मिले, आप उसको अवश्य सीखें। और इसकी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है। प्रेक्षा ध्यान केंद्र बैंगलोर के नाम से 15 दिन का कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के हिसाब से आप इसको 15 दिन का जो कोर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो प्रेक्षा ध्यान जो सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए ये ज्ञान का अपार सागर है, बहुत बड़ा सागर है। आज जो हमने चर्चा की वो एक बूंद के बराबर है। सागर में जो एक बूंद होता है, उतना भी हमने नहीं सीखा है। ये आगे सीखने के लिए पूरा सागर पड़ा है। तो जब भी आपको मौका मिले प्रेक्षा ध्यान क्लास अटेंड करने का या प्रेक्षा ध्यान शिविर अटेंड करने का,
तो प्लीज उसको अटेंड करें और प्रेक्षा ध्यान करने की कोशिश करें, डेली प्रैक्टिस करें। यूट्यूब पे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बहुत सारे वीडियोस हैं जहां ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं। कोई एक प्रयोग चुनकर आप डेली उसका अभ्यास करें तो धीरे धीरे आप ध्यान की गहराई में अवश्य प्रवेश करेंगे। तो अब हम जिज्ञासाओं को ले लेते हैं। चेतन जी या सुमित जी, संदीप जी, चैट बॉक्स में अगर कोई जिज्ञासा है या कोई लाइव अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? चैट बॉक्स में कोई है जिज्ञासा? किसी को कोई डाउट नहीं है, यानी सबको प्रेक्षा ध्यान अच्छे से समझ में आ गया है। यस रश्मि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। देखिए, जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मेरे अंदर डाउट है कि क्या कायोत्सर्ग से शारीरिक बीमारियां दूर होती है, क्या कायोत्सर्ग से भेद विज्ञान होता है, अगर मेरे अंदर डाउट है और मैं उसके साथ प्रयोग कर रही हूँ तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो भी आपकी जिज्ञासा है आप उसको व्यक्त करें। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सवालों का जवाब मेरे पास है, मुझे नहीं भी पता होगा, हम अपने सीनियर से पूछेंगे, हम गुरुदेव से पूछेंगे, साधु संतों से पूछेंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मन में कभी कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। जो भी आपको डाउट लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया है तो उसको पूछ लेना चाहिए। यस रश्मि जी, आप पूछिए अपना सवाल। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। रेणु जी, हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं अभी राजेश आवाज भाई आ रही है मेरी? कलकत्ता से। हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए रश्मि जी। हाँ, जय जिनेंद्र दीदी, मैं बोल रही थी जब मैं ध्यान कर रही थी मुझे हल्कापन का एहसास हुआ तो मैं वापस लौट आई कि मैं उड़ रही हूँ, ऐसा फीलिंग हुआ तो मैं वापस अपने ध्यान में लौट आई। तो क्या वो मुझे वो फीलिंग कंटिन्यूस रखनी चाहिए थी कि मुझे वापस लौट आना चाहिए था वहां पर? देखिए, ध्यान में ऐसा है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही करना है, आपको वही करना है। आपको जो सजेशन सुनाई दे रहे हैं आप उसके अनुसार जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई अनुभव है, जैसे पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या आप उड़ रहे हैं, तो उस अनुभव को अगर आप ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, तो वही आपका ध्यान है। ऐसा नहीं है, ध्यान में कोई रूल्स नहीं कि यही करना है या वही करना है। जैसे ही आपने आंखें, आप जो कर रहे हैं या जो आपको अनुभव हो रहा है, आपको दर्द भी हो रहा है तो उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाएं कि यहाँ पर घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं, प्रकंपन हो रहे हैं, उसको सिर्फ देखते जाना ही ध्यान है। जब आप वापस लौट कर आ रहे हैं तो आ जाइए, नो इश्यूज। नेक्स्ट राजेश जी, राजेश जी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ रेणु जी, हाँ बोलिए सर। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने कायोत्सर्ग कराया उसमें जैसे बाएं पैर के अंगूठे को जैसे आपने बोला, तो उसको क्या मूवमेंट करना है या ऐसे ही शिथिल, नॉर्मल शिथिल बाहों से करना है या कुछ मूवमेंट भी करना है हल्का? नहीं नहीं, मूवमेंट कुछ नहीं करना है। कायोत्सर्ग में केवल बाहों से करना। पूरा शरीर आपका प्रतिमा की भांति स्थिर रहेगा, कोई हलन चलन नहीं होगी। चित्त को वहां ले जाना, यानी आपके कंसंट्रेशन को वहां ले जाना। जहां चित्त वहां प्राण, जहां प्राण वहां ऑक्सीजन। वहां हमारा मतलब सिर्फ आपको अपने कंसंट्रेशन को दाएं पैर के अंगूठे पे लेके जाना है और वहां पर सुझाव देना है कि शिथिल हो रहा है और फिर उसका अनुभव करना है। कोई मूवमेंट, ये पहली सीढ़ी है कायोत्सर्ग, इसकी पहली सीढ़ी है प्रेक्षा ध्यान की। इसके बाद में जो चक्रास को हीलिंग करते हैं वो इसके बाद की सीढ़ी है। बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारे। जितना आप सीखना चाहते हैं कम पड़ेगा आपको, बहुत सीखने के लिए है प्रेक्षा ध्यान में। तो इसके लिए आप क्या मतलब रेगुलर आपकी क्लासेस रहती है या क्या है सिस्टम इसका, क्या है मतलब कैसे सीख सकते हैं? जैसे इसका लेवल 1 का कोर्स मैंने अभी बताया, यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्रेक्षा ध्यान केंद्र बैंगलोर। अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको 15 दिन का कोर्स वहां पर अवेलेबल है। उसको आप डे वाइज देखें, डे 1 डे 2, ऐसा नहीं कि उसको फॉरवर्ड करके या फटाफट से 2-3 वीडियो एक साथ देखें।
आज एक दिन बस डे 1 का देखा, उसमें जो होमवर्क दिया गया है, उसमें जो प्रयोग कराए गए हैं उसको आप करिए। फिर नेक्स्ट कल डे 2 का देखिए, फिर डे 3 का देखिए। ऐसे 15 दिन का जो कोर्स है वो आप उसको कंप्लीट करें, उसमें सारे लेवल 1 के सिलेबस कवर है। आज आपने जो कराया ये डे 1 का है, लेवल 1 ओनली, ये कागज जो कराया ये? हाँ, ये बिगिनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट किसी का सवाल है? अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र रेणु जी। जय जिनेंद्र। कायद शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो जब भी मेरा ध्यान अगर भटक रहा था तो एक वाइब्रेशन हो रहा था शरीर में, और फिर से मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वो शरीर मेरा मेरे को बोल रहा है कि नहीं आप ध्यान में लौटे। मुझे एक अलग वाइब्रेशन ऐसे हो रही थी, तो ये क्या सही था या? बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्यान के पहले ही मैंने आपको सजेशन दे दिया था कि अगर आपका मन भटक रहा है तो उसको वापस पकड़ के लाएं। तो जो आपको सजेशन हमने दिया वही आपका ब्रेन करेगा। हमारा ब्रेन, हमारा शरीर हमारी बात सुनता है, जो हम उसको ऑर्डर देते हैं वो शरीर करता है। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझसे ध्यान नहीं होगा, मैं तो 1 घंटे बैठ नहीं पाऊंगा। हम कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते, पहले ही डिसीजन ले लेते हैं। तो जब हमने कहा कि आप अपने मन को वापस लेके आओ ध्यान में, तो वही आपने ध्यान में किया। आपका मन गया बाहर, फिर आपने उसको पकड़ के लाए। और जो वाइब्रेशन होते हैं, जो प्रकंपन होते हैं, ये सारे अनुभव हैं। जो भी होता है उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते जाना है। उसमें ये अपने ये नहीं डालना विचार कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, उसको तो ऐसे होता था। अगर मान लीजिए किसी ने आपको अनुभव शेयर किया कि मुझे तो ध्यान में कलर्स दिखाई दिए, मुझे ऐसे वाइब्रेशंस दिखाए हुए, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तो आपको उस राग और द्वेष या उस डिसीजन में नहीं जाना है कि उसको ऐसा हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ। हर एक का अपना अलग अनुभव होता है, हर एक का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उसको केवल ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, वही ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? टाइम हो रहा है, जल्दी से अगर किसी का डाउट है तो शेयर करें। चेतन जी, यस, अपना शेयर करें। प्रियंका जी पूछिए आप। एक्सक्यूज मी, बोल रहे हैं कि जैसे हम ज्ञानशाला चला रहे हैं तो उसमें बच्चों को जैसे ध्यान करवाते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि ज्ञान केंद्र पे येलो रंग का ध्यान करिए, पीले रंग का ध्यान करिए। तो हम लोग तो करवा देते हैं, बट बच्चों का आपकी आवाज कट रही है, क्या क्वेश्चन है आपका? बच्चों का हम लोगों को तो हम लोग इसके लिए कर सकते हैं कि बच्चों को सेटिस्फाइड कर सके। आपका लास्ट का सेंटेंस मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या हम क्या कर सकते हैं? आप या तो वीडियो बंद करके एक बार भाभी पूछ लीजिए क्वेश्चन। ओके ओके। जैसे हम बच्चों को ध्यान करवाते हैं तो येलो रंग का सजेशन देते हैं, ज्ञान केंद्र पे येलो रंग का ध्यान करिए। तो बच्चों को रहता है कि हमको येलो रंग नहीं दिख रहा है, हम लोग मैम क्या करें, हम लोगों को येलो रंग दिखाई दे। तो इसके लिए हम लोग उनको क्या सजेस्ट करें कि उनको लगे कि हाँ हम लोगों को वो हो रहा है। देखिए, ऐसे कलर कार्ड्स मिलते हैं स्टेशनरी शॉप पे, कहीं भी स्टेशनरी शॉप पे मिलते हैं ऐसे कलर कार्ड्स। ये जो 5 कलर के हम ध्यान करते हैं मंत्र प्रेक्षा में, बच्चों को एक्चुअली मैं बोलूंगी कि बच्चों को ध्यान कराना बहुत जरूरी है। ये सबके लिए है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज आप उनको ध्यान से इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि बचपन में जो हम सीखते हैं, जैसे हमने मॉन्टेसरी में जो सीखा वो अभी तक हम नहीं भूल पाए। तो बच्चों का ब्रेन बहुत ही मतलब वहां पर कुछ बिलीव्स नहीं होती है, वो एकदम प्लेन होते, कोरा कागज होते। तो जब हम बचपन में ही ध्यान की आदत डालते हैं बच्चों को, तो वो बहुत जल्दी उसको ग्रास्प कर लेते हैं। और जो आप कलर का बोल रहे हैं, तो ऐसे कलर कार्ड्स आप उनको बताएं और उनको बोले कि जब आप फ्री हो, जब खेल रहे हो, तो ऐसे कलर्स को देखें, यानी नींबू को देखें या येलो फ्लावर को देखें। तो जब वो ध्यान में बैठेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उस कलर को वो इमेजिन करेंगे। ये एक आलंबन है। जब हम इस आलंबन के साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे, तो धीरे धीरे, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। हम कोई भी आलंबन के साथ जब हम प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे वो आलंबन कब छूट जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, और हमारे अंदर से वो कलर उद्घाटित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम साइकिल चलाते हैं तो पहले हम दोनों टायर्स लगाते हैं साइड के, राइट, लेफ्ट और राइट में। धीरे धीरे जब हम चलाना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे एक टायर निकाल देते हैं, फिर दूसरा टायर भी निकाल देते हैं। और जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वो आलंबन कब छूट गए, और दोनों हाथ छोड़कर भी हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं।
ऐसे ही ध्यान की शुरुआत में हमें कुछ आलंबन की जरूरत होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसकी मदद से हम ध्यान में प्रवेश कर सकें। एक बार आपका उसका एक्सपीरियंस हो गया, फिर वो आलंबन छूट जाएंगे। ओके, टाइम हो गया है। संदीप जी, अगर आपको कुछ बोलना है, करना है तो करके क्लास को वाइंड अप कर। चेतन भैया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं? चेतन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? किसी का सवाल नहीं है तो आप वाइंड अप कर सकते हैं संदीप जी। उसके पहले जब भी हम प्रेक्षा ध्यान क्लास वाइंड अप करते हैं तो संकल्प का उच्चारण करते हैं। तो सब सीधे बैठे, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, और मेरे बाद रिपीट करें, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। आज की जो भी क्लास हुई है, जो भी हमने चर्चा की है या जो भी प्रयोग किए हैं, वो सब गुरुदेव की कृपा से पॉसिबल हुआ है। तो हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं गुरुदेव को। कृतज्ञोस्मि, हम सब कुछ गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब कुछ गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब कुछ गुरुदेव के प्रति आभारी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कोलकाता टीम को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है प्रेक्षा ध्यान क्लास लेने के लिए। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और जितने भी यहाँ पे डायस पर पधारे हुए हैं, उन सबको मेरा अभिनंदन। थैंक यू सो मच। कृतज्ञ उसमें। आप कंक्लूड कर सकते हैं संदीप जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे तेरापंथ युवक परिषद बेहाला के अध्यक्ष महोदय श्री चेतन जी चोपड़ा से। श्री चेतन जी चोपड़ा। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में वंदन। कोलकाता में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी के चरणों में वंदन। साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी के प्रेरणा से आज का हम कार्यक्रम सफल कर पाए। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। हम सब ने मिलकर जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि आचार्य महाप्रज्ञ जी को अर्पण की है आज के प्रेक्षा ध्यान के कार्यशाला के माध्यम से, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेणु जी और उनकी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही सुंदरता से प्रेक्षा ध्यान के ज्ञान से आज हमें अवगत कराया। मैं बेहाला तेरापंथ सभा के सभी पदाधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि गण का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से हम आज का कार्यशाला सफल कर पाए। मेरे युवक परिषद के सभी कार्यकर्ता एवं सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयासों से आज हमने आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस पे ये कार्यशाला हमने उत्साहपूर्वक संपन्न की। ओम अरहम।
आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रयासों से हम प्रेक्षा ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा जो ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें अगर आप यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दें जो लेवल 1 का आप बता रहे हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा ये रहेगा कि हम 15 दिन में आप लेवल 1 वाली कोर्स कर सकें और आगे फिर ऐसी कार्यशाला या शिविर का हम आयोजन कर सके। आशा करते हैं आपका संपूर्ण अनुमति हमें रहेगा सहयोग आपकी पूरे टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत ही अच्छा अनुभव था। आशा करता हूँ सभी को प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। ये कार्यशाला सभी के जीवन शैली में एक बदलाव लाएगी। इसी के साथ ओम अरहम। अब हम इस कार्यशाला को आज यहीं संपन्न करते हैं। सभी को जुड़ने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। ओम अरहम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।